In this session, we are going to construct a isometric view or 3D view by using orthographic view. Okay, you can see here. So this is a orthographic view or 2D view. So front view is given, top view is given. So this is a orthographic view. By using this orthographic view, we need to construct a isometric view. Okay, isometric view means what? 3D view, or in short you can say, so this 2D view is converted into 3D view, or you can say orthographic view is converted into the isometric view. Okay, you can see the problem statement. The figure shows the front view and top view of an object. Okay, so front view is given and top view is given. Okay, by using this two view, that is front view and top view, we need to construct the isometric view. Okay, so isometric means what? It is a 3D object. So we need at least 3 dimension. Okay, 3D object has 3 dimension, that is length, width and height. Okay, so by using these two views, that is front view and top view, we can construct the 3D view, because these two views are can give us 3 dimension. Okay, in front view we can get the length and height of this object, and in top view length and width. Okay, so by using this two view, we are getting the 3 dimensions. Okay, length, width and height. Okay, and this 3 dimension is more than sufficient to construct the 3D object. Okay, so that's why, so these two views are more than sufficient to construct any 3D object, because these two views are giving us 3 dimension. In front view length and height, and in top view length and width. Okay, so what are the 3 dimension we needed? Length, width and height. So these two views are giving us 3 dimension, that is length, width, height. Okay, by using that dimension, we need to construct the 3D view or isometric view. Okay, so you can see here, so this is a cube concept. Okay, so I have already explained you in previous session. Okay, you can see, so this base is drawn at an angle of 30 degree. Okay, so this base is drawn at an angle of 30 degree. Okay, you can see, so this is a length and this is a width. Okay, and this is a height. Okay, so we need to begin with drawing a object at an angle of 30 degree. Here question arises, why 30 degree? Because at this angle we could able to see, or we could able to show all the 3 dimension, that is length, width and height equally. Okay, that's why every 3D object is drawn at an angle of 30 degree, so that in single view we can able to show all the 3 dimension, that is length, width and height. Okay, so first of all we need to begin with drawing the base of this object. Okay, so first of all I will draw one rough diagram. Okay, so this base. Okay, okay, and we need to mark this. Okay, then this is height. Okay, and this is what? Length, and this is width. Okay, so this is 30 degree and this is 30 degree. Okay, so what is this one? This one length is equal to, and this one height is equal to, and this one width is equal to. Okay, so we need to calculate total length, total height and total width of this object. Okay, as per this cube concept. Okay, so what is the total length? So length we need to हमको लेंथ कहाँ पे मिलने वाले? फ्रंट व्यू में. फ्रंट व्यू में देखो लेंथ और हाइट, तो टोटल लेंथ कितनी है ऑब्जेक्ट की? देखो यहाँ पे 20 20 20 60 mm. नेक्स्ट कैलकुलेट हाइट कहाँ पे मिलती है? फिर से हमको फ्रंट व्यू में 2 डायमेंशन मिलने वाले हैं, लेंथ एंड हाइट. तो टोटल हाइट कितनी है? यहाँ पे देखो 30. ओके, तो टोटल हाइट है 30. नेक्स्ट आपको विड्थ कहां पे मिलने वाली है? विड्थ हमको टॉप व्यू में मिलने वाली है. ये क्या है? ये लेंथ और ये है विड्थ कितना है? 40 mm. ठीक है, तो इनिशियली वी नीड टू कंस्ट्रक्ट वन बॉक्स ऑफ साइज 60 by 30 by 40. ओके, so initially, so I am using pen. Please you use the pencil. Okay, जितना भी लाइंस में अभी ड्रॉ करने वाला हूं वो आपको लाइट ड्रॉ करने का है. पेन से पॉसिबल नहीं है. ओके, तो आप पेंसिल यूज करने वाले हो तो पेंसिल से पॉसिबल है. तो जितना भी मैं लाइन ड्रॉ करने वाला हूं वो आपको लाइट ड्रॉ करना है. ठीक है, तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं.
तो एक लाइन ड्रॉ करो और उसके ऊपर एक रेफरेंस पॉइंट लेना, ठीक है, उसके ऊपर एक रेफरेंस पॉइंट लेना, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले ये 30 डिग्री एंगल मार्क करना है दोनों साइड का, क्योंकि इस साइड में आएगा लेंथ और इस साइड में आएगा विड्थ, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट मार्क करो इसके ऊपर, टेक द कंपास, टेक द प्रोट्रैक्टर एंड मार्क 30 डिग्री बोथ द साइड, ओके, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, ओके, 30 डिग्री 30 डिग्री बोथ द साइड, ओके। नेक्स्ट, so what is this? This is length. How much? 60. Okay, so these lines should be very light. I am using pen. For me it is not possible to draw the light line. Okay, so this is 60. Okay, so this is 60. Okay, next, how much width is given? Width 40 degree and angle 30 degree. Okay, length 60 degree, angle 30 degree, length 60 mm, angle 30 degree, width 40 mm, angle 30 degree. So this is 30 and this is 30. Okay, next height how much? 30. So from this point you can observe, from this point 30, 30 and 30, from this point 30, 30 and 30. Please use roller scale only. 30 and 30. Okay. Next, just you need to join this point. These lines should be very light. This is not our answer. Okay, so these lines should be very light. Okay, now see, now we need to close this box. Okay, so यहां पे जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इसको पैरेलल चाहिए, और यहां पे जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको पैरेलल चाहिए। यहां पे देखो, each line, if you consider this here, each line is parallel to one another. Okay, this line is parallel to 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 this. So in this isometric view or drawing, each line should be parallel to one another. Okay, then only you will get the proper shape. So take the roller, use the roller scale. I am also using roller scale. Okay, okay, you can see. So I have closed this box. So see here, this line is parallel to this one, this line is parallel to this one. Okay, so we have constructed one box of size how much? 60 by 30 by 40. Okay, next. Okay, now first of all concentrate on front view. Okay, concentrate on front view. Okay, so this is our length. Okay, this is our length. ये है length. Okay, ये है width और ये है height. Okay, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है, ये है विड्थ और ये है हाइट, एज पर दिस कॉन्सेप्ट। ओके, और एज पर दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ठीक है, फ्रंट व्यू से स्टार्ट करेंगे। ओके, लेंथ कहां पे है? ये है हमारी लेंथ। ओके, तो ये लेंथ, फ्रंट व्यू हमारा कहां पे आएगा? यहां पे आएगा फ्रंट व्यू। यहां से क्यों नहीं? यहां पे विड्थ है, यहां पे विड्थ है, तो लेंथ ये है हमारी लेंथ। ओके, फ्रंट व्यू में कौन सा है? लेंथ और हाइट। ओके, लेंथ एंड हाइट। ओके, फ्रंट व्यू में दो डायमेंशन कौन से है हमारे? लेंथ और हाइट। तो फ्रंट व्यू हमको, ये है लेंथ और ये है हाइट, तो यहां से हमारा फ्रंट व्यू आएगा। ये क्या है? ये है विड्थ। ओके, और ये हाइट, तो ये टॉप व्यू हुआ। ओके, तो ये साइड व्यू हुआ। ओके, तो यहां से स्टार्ट करेंगे हमारा फ्रंट व्यू से। ऑलवेज यू नीड टू स्टार्ट विथ फ्रंट व्यू। ओके, ये है लेंथ, ये है हाइट, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज कॉपी करना है। तो इसका लेंथ कितना है? देखो यहाँ, इसका लेंथ 60, तो ये ऑलरेडी 60 है। इसका हाइट कितना है? हाइट 30, तो ये ऑलरेडी 30 है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से, तो यहां से 20, तो ऐसे ही मार्किंग करना है आपको, यहां से 20, ठीक है। तो 20 मैंने मार्क किया यहां से। फिर से
देखो यहां से 20, यहां से 20, ये एज इट इज आपको यहां पे कॉपी करना है। ये जो फ्रंट व्यू है एज इट इज यहां पे कॉपी करना है। ठीक है, तो यहां से फिर से 20, ठीक है, तो यहां से फिर से 20। ठीक है, तो हमने ये दिखाया है 20 20। ओके, नेक्स्ट इसका हाइट कितना है? हाइट देखो यहां पे 20 दिया है, फिर से हाइट। ओके, जब आप हाइट मेंशन करोगे कि ये क्या है हाइट, तो हाइट इस लाइन को पैरेलल चाहिए, तो ऐसे पैरेलल आना चाहिए। तो यहां पे देखो, सो दिस लाइन शुड बी पैरेलल टू दिस वन और दिस वन। तो ये है 20। ओके, तो फिर से यहां से 20, ठीक है, यहां से 20। ठीक है, यहां पे देखो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन, दिस लाइन पैरेलल। अभी ये जो कनेक्ट करोगे ये भी लाइन इसको पैरेलल चाहिए। ईच लाइन शुड बी पैरेलल टू वन अनदर। ओके, ठीक है, तो ये हमने एज इट इज यहां पे कॉपी किया है। तो फ्रंट व्यू से देखने के बाद ये कैसे दिखने वाला है? ऑब्जेक्ट फ्रंट व्यू में ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमारा इसको हमने फ्रंट व्यू दिखाया, अभी टॉप व्यू दिखाना है। तो टॉप व्यू में क्या दिख रहा है? ये जब आप ऊपर से देखोगे ब्लॉक, ओके, तो हमको क्या दिखने वाला है? 3 ब्लॉक दिखने वाले हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। जब हम यहां से ऊपर से देखेंगे इसको, इस ब्लॉक को, तो हमको क्या दिखने वाला है? 3 ब्लॉक दिखने वाले हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ओके, तो इसका लेंथ कितना है? लेंथ ऑलरेडी 60 है, तो ये ऑलरेडी 60। इसका विड्थ कितना है? 40 mm है। ठीक है, तो इस ब्लॉक को, ये इस ब्लॉक के बारे में हम बात करें, फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक एंड थर्ड ब्लॉक। जब हम इसको ऊपर से देखेंगे ये ब्लॉक को, तो कैसे दिखने वाले? 3 ब्लॉक दिखने वाले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, तो ये जो है इसको हमको कितना विड्थ देना है? 40 mm। यहां पे देखो, तो ये ऑलरेडी 40 है, तो हर एक पॉइंट से आपको 40 mm ड्रॉ करना है। सो ये जो आप लाइन ड्रॉ करोगे, सो दिस लाइन शुड बी पैरेलल टू दिस लाइन। देखो, ठीक है, तो फ्रंट व्यू में ये ऐसे दिख रहा है जो हमने एड्रेस यहां पे कॉपी पेस्ट किया है। टॉप व्यू में कैसे दिखने वाला है? 3 ब्लॉक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इसको सिर्फ हमने क्या किया है, फ्रंट व्यू में 2 डायमेंशन दिखाए हैं, एक तो इसका लेंथ और हाइट। तो पेंडिंग कौन सा डायमेंशन है? विड्थ। तो विड्थ हमको कहां पे दिखानी है? यहां पे। ये क्या है? ये है विड्थ। हाइट हमने यहां पे दिखाई है, सॉरी, लेंथ और हाइट फ्रंट व्यू में दिखाई है। तो बचता क्या है? लेंथ दिखाया, हाइट, तो विड्थ बचता है। विड्थ कहां पे? ये है विड्थ हमारी। तो इस ब्लॉक को हमको विड्थ देनी है, फर्स्ट सेकेंड। ओके, तो यहां पे देखो 3 ब्लॉक दिखने वाले हैं ऊपर से देखने के बाद, फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक एंड थर्ड ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, इसमें पेंडिंग क्या है अभी? तो यहां पे देखो ये जो ब्लॉक है, तो इसको हमको हाइट देना है। हाइट कितना है इसका? इसका हाइट 30 है, तो यहां से 30। तो आपको सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। सो दैट लाइन शुड बी एग्जैक्टली वर्टिकल। तो आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, ठीक है, ये ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और क्या पेंडिंग है इसमें? यहां पे देखो, यहां पे भी जो ये स्लॉट है इसको भी हमको लेंथ देना है। तो ये आपको सिर्फ ऐसे ज्वाइन करना है। अब देखो, अब ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मेन पोर्शन है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, वो आपको अभी हाईलाइट करना है। यहां पे देखो, ये अभी डार्क ड्रॉ करना है आपको। इसलिए मैं स्टार्टिंग को बोल रहा था ऑब्जेक्ट लाइट ड्रॉ करो।
ओके ठीक है, अभी चेक करो आपका आंसर जो आपने 3D ड्रॉ किया है इसके आंसर के साथ ड्रॉ चेक करो। ठीक है, देखो फ्रंट व्यू से देखने के बाद हमको क्या दिखने वाला है, ये ऐसा दिखेगा। ओके, तो हमने फ्रंट व्यू ड्रॉ किया है। नेक्स्ट सेम ऑब्जेक्ट अगर हमने टॉप व्यू से देखा तो हमको क्या दिखने वाला है, 3 ब्लॉक दिखने वाले हैं, फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक एंड थर्ड ब्लॉक। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक एंड थर्ड ब्लॉक। ओके, तो ये ज्वाइंट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये स्लॉट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन है क्या, नहीं है, इसलिए ये हमने डार्क नहीं दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है। ठीक है, ओके, ये कौन सा लाइन है, ये बैक साइड है। ओके, तो हर एक लाइन यहाँ पे नहीं दिखाएंगे वो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू में, आपको इमेजिन होना चाहिए। ठीक है, ये लाइन दिखाया है क्या फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में, नहीं दिखाया है। तो आपको जब ड्रॉ करोगे 3D ऑब्जेक्ट तो आपको इमेजिन होना चाहिए कि यहाँ पे भी लाइन एक आएगी। ये लाइन भी यहाँ पे दिखाया है क्या, ये लाइन नहीं दिखाया है इसमें, तो आपको इमेजिन होना चाहिए कि यहाँ पे भी लाइन आएगी और यहाँ पे भी लाइन आएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है। जब फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू देते हैं ना, तो सबसे पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ करने का। फ्रंट व्यू में हम क्या दिखाते हैं, लेंथ एंड हाइट, तो बचता क्या है, विड्थ, तो विड्थ आप टॉप व्यू में दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपको ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहिए। यहां पे देखो ईच लाइन इज पैरेलल टू वन अनदर। ओके, अगर आपने ऑब्जर्व किया ईच लाइन शुड बी पैरेलल टू वन अनदर, सो दैट मे बी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अभी इसको आप डायमेंशनिंग करना है। सारे डायमेंशनिंग दिखाने की जरूरत नहीं, यू कैन शो दिस 60, 30 एंड 40। So this should be very light. Okay, so dimension line you need to show the like this only. तो ये क्या है, ये है 60। नेक्स्ट आप हाइट दिखा सकते हो। हाइट कितना है, हाइट है 30। ओके, नेक्स्ट अभी पेंडिंग क्या है, विड्थ। ओके, तो विड्थ कितना है, विड्थ है 40। ओके, so let's see. So first, after drawing 3D object, you need to mention this 30-degree angle, and then you just need to mention length, width and height, more than sufficient. Okay, so this is how we need to construct the 3D view from the 2D view, or you can say orthorhombic view is converted into 3D view. Okay, okay, so now we will solve same problem. Okay, now we are going to solve same problem. Just what we will interchange here now, see, we will take length this side and w this side. Okay, okay, because two orientations are there in front view, first orientation, second orientation. Okay, now what we will do, we will change length, we will take length this side and we will take width this side. Let's see, there is no change in answer. Okay, what will happen, so this view will come like this. Okay, आपको फॉलो करना है, कौन सा भी एक मेथड आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, फिर से ये ड्रॉ करता हूं। देखेंगे स्पेसिंग कितना है इसमें, 9। ओके, देन ऑल्सो आई विल ट्राई ओवर हियर ओनली। ओके,